Hi guys, welcome back to Travel Lights. Another day, another video. And guys, this video is unexpected, out of the box because ऐसा हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था या अब तक हमने इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई थी कि we'll be coming up with a questionnaire. But what we did was all through our videos, we just run through all the comments and everything. उसमें से हमने कुछ रैंडम कमेंट्स पिक किए हैं एंड वी हैव ट्राइड टू कम अप एज अ Q&A ताकि जो क्वेश्चन हमें लगे कि बहुत ही ग्लोबल स्कोप रखते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में हो सकते हैं एंड इट कैन हेल्प यू गाइज. सो वी हैव अप कम अप इन दिस वीडियो विद ऑल दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल to know and understand the Dubai job market reality and other things associated to it. It's not job, there are other factors involved in this questionnaire as well. But before we get into this video guys, we have a special announcement for you. So that special announcement is हमने अभी 5000 अपने सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं and with this like we are so overwhelmed. We have been constantly addressing this, like we are very grateful for each one of you. But उस 5000 के लिए we thought to like हमें कुछ आपके लिए भी करना चाहिए. So we are coming up with a like 5 bonus videos for you guys. So next week दो वो दुबई से travel related होंगी because our whole soul is into travel and other stuffs. But दुबई के लिए आपको वो बहुत ही ज़्यादा pure and raw insight देने वाला है and it would be like 5 vlogs back to back, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. upcoming week में आपको 5 वीडियोज एक साथ मिलने वाली हैं. दिस इज़ आवर टाइनी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर यू गाइज, जो आपने हमें इतनी मदद की है, इतना हमें हेल्प और सपोर्ट किया है एंड दैट्स हाउ वी हैव रेसिप्रोकेटेड बैक. वी विश आपको वो कंटेंट भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा एंड यू विल लव एंड एडमायर अस एज वेल इन दैट वीडियो. बट अब चलो, हमने अपने बम्पर वीडियोस की तो अनाउंसमेंट कर दी है, तो हम अपने स्ट्रेट Q&A सेक्शन में आते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो पहला क्वेश्चन है कि डू दे टेक ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फ्रॉम यू. सो गाइज, यहाँ पे कोई भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स नहीं लेता है. देयर इज ओनली वन वे, लाइक व्हेन यू कम हियर एंड गेट योर डिग्री अटेस्टेड, 1 या 2 दिन के लिए आपकी डिग्री आपसे ली जाती है देन यू आर रिटर्न इट बैक. बट नो कंपनी इन एटलीस्ट हैव नॉट सीन एट ऑल एनी सिनेरियोज जहाँ पे कंपनीज आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेती है अपने पास. सो इफ समवन इज आस्किंग फॉर यू, दैट्स अ रेड फ्लैग एंड बी अलर्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. बट nobody takes original certificates from you. Second question is like, do walk-ins work here? Like he's someone who is coming from India to Dubai on a visit visa of 1 month and in that particular duration he wants to apply. And yeah, that's a fair way. People generally do this over here. They take a 1 month or a 2 month visit visa, come to Dubai and just simply do walk-ins. They apply on other portals and take some initial referrals which they have, might be they have over here already, or they ask someone for help in that particular case. So yeah, that do happens and that's legalized, that's possible. You can come here on a visit visa and then you can start searching. If you're someone who's coming on a visit visa, I'll suggest like take like lot of copies of your resumes and everything coming with you. And also what you can try is, if you're coming with a full-fledged mind, because they don't send you back like, okay, you have got the placement now, you have got the job now, go back to your country and then come back after and join us after a month. Generally what happens in here is, when you are here, they are asking you to join next week, in another 5 days, 10 days. So come up with your proper documentation here. That's what like the best I can suggest you guys. But yeah, that's possible. Okay, so coming to question number 3, which says ki for what duration you were offered visa. So I think the person who is asking wants to know like मुझे कितने duration के लिए visa मिला है. So guys, I have been offered a 2-year residence visa here in Dubai. तो मेरा visa 2 साल का है and after those 2 years I need to again extend it. या either my organization will do, I need to check on that norms because अभी तक मेरा कभी visa extension नहीं कराया है. But the current visa which I am on here in Dubai is 2 years residence visa. Coming to the question number 4, is fluent English necessary to do a job in Dubai? Guys, this is a really important question. बहुत सारे लोगों के मन में भी होता है. English do plays an important role because यहाँ पे like the mode of communication, there are a lot of expats here. People are coming from different domains, different background, and उन लोगों के साथ काम करने के लिए आपकी English तो अच्छी होनी ही चाहिए. That is the bare minimum requirement. और ये उम्मीद की जाती है कि कोई भी इंसान अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री आ रहा है तो उसको इतनी इंग्लिश आती होगी. द मोर यू फ्लुएंट आर, द मोर चांसेस ऑफ यू
to try to interact with more people, which somewhere results in like better opportunities and the rest of the things. But English plays a vital role here, and also English के अलावा अगर कोई दूसरी language है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा important है, तो that's Arabic. So in case you have something like you know Arabic really well, you can conversate in English, because बहुत सारी job requirements आती है जहाँ पे Arabic को एक necessary requirement के तौर पे post किया जाता है. So you can know like कितनी important है Arabic here in Dubai. So coming to our next question, which is question number 5. Someone has asked whether this shift is worth from India to Dubai. I mean, salary wise and saving wise. I've heard finance sector managerial jobs in Dubai are paid good. Your insight, please. So to answer your question, like a shift from India to Dubai is worth only and only when you are paid really good when compared with what you are receiving there in India. अगर आपकी Indian salary 30,000 40,000 है, एंड यहाँ पे आपको आके 2 लाख 3 लाख या फिर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख भी मिल रहा है, सो दैट्स अ गुड शिफ्ट. बट अगर आपको वहाँ पे 30,000 मिल रहा है, यहाँ पे 60,000 मिल रहा है, सो इट्स अ बैड डील. To be honest enough, it's a bad deal because the cost of living in Dubai is really high. Please do not underestimate the cost of living here in Dubai. It causes a lot of other expenses. You don't understand where your money is going. There are many other things which take tiny bit of all your money. So वर्थ इट तभी है जब आपका जो पे स्किल डिफरेंस है वो हाई है. इफ़ यू आर समवन कमिंग फ्रॉम लाइक मार्केटिंग बैकग्राउंड, फाइनेंस बैकग्राउंड, दिस प्लेस इज गुड. दिस प्लेस गिव्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एक्सपोजर. अगर आप यहाँ पे एक्सपोजर लेने के लिए आ रहे हो तो बहुत ही अच्छी जगह है. फिर तो मैं कहूँगी कि आप कुछ भी मत सोचो अपने दिमाग में कि सैलरी कितनी मिलेगी कितनी नहीं, क्योंकि आपको क्या चाहिए इस टाइम पे अपने करियर पे. आपको एक्सपोजर चाहिए, वो आपको मिल रहा है. आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए, आपको रेफरल्स चाहिए, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, वो आपको मिल रही है. बट आप अच्छा सेटल्ड हो, 4-5 साल हो चुका है जॉब करते हो, अपनी लाइफ में आगे प्लान कर रहे हो, यू हैव अ फैमिली टू लुक आफ्टर, और उसके बाद आप अपना लाइफ में ये लेना चाहते हो स्टेप. सो आई विल से बी माइंडफुल, लुक इनटू योर सैलरी फर्स्ट एंड देन टेक द नेसेसरी नेक्स्ट स्टेप्स. Okay, so this closes this question, and now we will move to question number 6. I am third semester laminated. Does semester result matter for testing? I have degree normal as it is. So this is quite a difficult comment to understand, but जितना मुझे पढ़ के समझ में आया, this person wants to understand कि इनके थर्ड ईयर की जो डिग्री है, सेमेस्टर रिजल्ट है, वो लैमिनेटेड है, बट डिग्री इनकी लैमिनेटेड नहीं है. सो इज दैट ओके? सो गाइज, जब की टेस्टेशन होती है वो सेमेस्टर रिजल्ट्स पे नहीं होता है, डायरेक्ट डिग्री पे होता है. सो दैट्स जस्ट वन डॉक्यूमेंट. इन केस यू हैव डन लाइक ग्रेजुएशन एंड अ पोस्ट ग्रेजुएशन, योर हाई डिग्री हैज द मोर चांसेस ऑफ गेटिंग लाइक अटेस्टेड है. वही ज़्यादातर अटेस्ट होती है इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो. सो मेक श्योर कि वो डिग्री लैमिनेटेड नहीं है. दैट्स इट. रिजल्ट अगर आपके लैमिनेटेड है, नहीं लैमिनेटेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जो स्टैंपिंग होती है एक्चुअली में वो मेन डिग्री पे होती है. इवन इन दैट केस अगर वो लैमिनेटेड है भी तो उसको पूरा टीयर करना पड़ता है उन्हें. सो आप अगर आपको आ रहे हो यहाँ पे और आपकी डिग्री लैमिनेटेड हो, प्लीज उसको पहले से ही अनलैमिनेट करा लो, या मतलब उसको टीयर ऑफ करा लो प्रॉपरली. Okay, so guys, coming to the next question, which is which field has more opportunity in Dubai, data scientist or data analyst? To be honest enough, IT roles here are quite a few. पहली बात तो जो इनका प्रॉपर जॉब मार्केट का बड़ा सा सर्कल होगा, उसमें I'll say कि IT is a very smaller pie. मतलब IT सेगमेंट बहुत ही कम है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर दुबई इज़ अ ट्रेडिंग हब. दुबई इज़ नोन फॉर ट्रेड्स, बिजनेसेस एंड अदर स्टफ्स. यू विल नॉट फाइंड अ ह्यूज बिग मल्टीनेशनल कंपनीज हेयर, बट जनरली विथ टाइम एज लाइक वी आर मूविंग इन टू दिस डोमेन, यहाँ पे कंपनीज खुल रही हैं. बट स्टिल मैं कहूँगी कि रोल्स बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हैं. दे आर मिनिमम लाइक यू विल फाइंड समथिंग फॉर डेटा एनालिस्ट, सम डेटा साइंटिस्ट. ऐसा नहीं है कि बल्क में रोल्स हैं, बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही होती है. सो दैट्स नॉट ट्रू. डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट गाइस दोनों ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल हैं, दोनों ही रोल्स अवेलेबल रहते हैं दुबई में. बट द थिंग इज़ कि आप किस डोमेन में काम कर रहे हो. अगर आप डेटा एनालिस्ट में हो तो आपको अपने रोल सेंट्रिक मतलब और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को टारगेट करना चाहिए. इफ यू आर इनटू साइंटिस्ट डोमेन, देन यू शुड ट्राई लाइक सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़. मतलब आप दोनों का डोमेन ही अलग हो जाता है. दीज टू आर डिफरेंट फील्ड्स. One is more research oriented, which provides you like more models to help your customer segmentation and all those kind of stuffs. One is like providing quick and ad hoc analysis. तो दोनों ही domains बहुत different हो जाते हैं, दोनों को करने के तरीके बहुत different हो जाते हैं. बट अगर हम रोल वाइज बात करें तो दुबई में दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं. तो आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हो.
ओके, सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग. जो कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे उनको काफी मजा आने वाला है. Nice video, but I heard harsh truth that in UAE, Indians tend to play politics by not allowing employees of other nationalities like Bangladesh, Pakistan, Yemen to settle in the company. They start their lobbying and try their best to kick out such employees from organizations. So guys, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है because to answer it on a raw platform, यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स लाइक एवरी वन इज़ वर्क सेंट्रिक. पहली बात, किसी के पास टाइम नहीं है इतना कि वो वहाँ पे ऑफिस में बैठ के पंचायत करे एंड दे डू पॉलिटिक्स एंड ऑल. टॉकिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो कि दुबई में है, पहली बात तो आधे से ज़्यादा लेबर उसमें है जो कि यहाँ पे लेबर्स के उसमें काम कर रहे हैं. इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से यहाँ पे लेबर्स बहुत ज़्यादा आते हैं. दैट कंस्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग हियर इन दुबई एंड यूएई रीजन. सेकेंडली, जिनकी हम बात करते हैं जो कि वाइट कॉलर जॉब्स में होंगे, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो जॉब्स में है वो बहुत ही कम इंडियंस हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर कमिंग इन फ्रॉम इंडिया हियर आर डूइंग बिजनेसेस. उनके या तो अपने बिजनेसेस हैं या फिर उनके अपने शॉप्स हैं या फिर वो अलग ही तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पे. सो पीपल आर नॉट सो मच इन टू दिस ऑफिस स्टाफ्स. ऑफिस लाइफ बहुत कम है लोगों की जो कि इंडियन से पर्टिकुलरली. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर नेशनैलिटीज, यूरोपियन, यूके, जो कि यहाँ पे जॉब्स भी कर रहे हैं. So I'll not say this generally happens, and please, if you're coming here, so keep your mind clean. There's nothing of this sort which is happening to other folks as well. Honestly, थोड़ा बहुत up and down हर organization में होता है. You feel like working with some of your colleagues. You don't feel like working with other colleagues. That's okay. That's absolutely personal choice. But commenting such a big thing like they will do politics with you, that would be like completely unfair to say on this platform. And this is wrong as well because अभी तक it's been 6 months now here in Dubai. मैंने कभी ऐसा कुछ feel नहीं किया. In fact, what I felt was since I was an outsider coming to Dubai from India, पहली बात तो मेरी कंपनी में ही इंडियन लोग बहुत कम है, ठीक है, जो काम कर रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ट्रीटेड वेरी नाइसली. पीपल ट्राई टू कम अप एंड हेल्प अस इन द बेस्ट पॉसिबल वे. सो या, अब पॉलिटिक्स की टेंशन से दूर हो. पॉलिटिक्स जो हो रही है वो राजनीति में ही होने देते हैं एंड वी आर गुड हियर. सो ऑल सॉर्टेड. Okay, coming to the next question, guys. Okay, the comment is from someone. Hello, sister. It's my dream to work in Dubai. It's a very long comment. I'll just short it up for you guys. So he wanted to become a data analyst and preparing to become one by investing the whole salary in Scalar Academy. So guys, if you're someone जिसको start ही data analyst से करना है, I'll say कि start with basics, जो कि यूट्यूब से बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है आपके लिए जिसको आप लेवरेज कर सकते हो. सो ट्राई टू स्टार्ट विद दैट, डायरेक्टली पेइंग फॉर सम अदर कोर्सेज और सर्टिफिकेट. जब आपको लगने लगे, कैसा भी हो सकता है कि आप 6 महीने उसको पढ़ो एंड आपको लगे यार मुझे को तो इंटरेस्ट ही नहीं कर रहा है, इसमें बहुत सारी मैथ्स इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारे स्टैट्स इन्वॉल्व है, मुझे नहीं लगता है कि डोमेन मेरे को हेल्प करेगा. सो वाई डोंट यू लेवरेज लाइक इनिशियल जस्ट बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर वन डोमेन जस्ट बिकॉज ऑफ सैलरी, दैट्स नॉट पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट ना. और ऐसा लॉन्ग टर्म में हेल्प भी नहीं करता है. जब तक आपको खुद का इंटरेस्ट नहीं हो तब तक वो स्पेसिफिक रोल या डोमेन आपकी हेल्प नहीं करता है. बट अगर आप सच में क्यूरियस हो डेटा एनालिस्ट फील्ड के लिए, स्टार्ट स्लो, स्टार्ट ग्रेजुअली. अपने जो भी बेसिक ब्रश अप स्किल्स हैं उनको कवर अप कर लो यूट्यूब पे देखकर, rather than paying your whole salary to Scalar Academies and other stuffs. Like you are doing, like you're earning well, you're just pushing to another course, उसको करते हो, उसके बाद उसका पूरा पैसा बर्बाद कर देते हो, and then finally after 6 months you realize कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे इसमें कुछ करना भी नहीं है. So which in my opinion is not that great or like worthy. बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, पहले उनको कर लो. उनके बाद like if you feel like there is still a scope, मुझे अपना प्रोजेक्ट समझने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए, then why don't you just go for a paid course? Go ahead, because paid courses के अपने कुछ experiences होते हैं, अपने कुछ फायदे होते हैं, अपने कुछ benefits होते हैं. They try to impart and help you out to the fullest, और थोड़ा ज़्यादा extended support होता है. That's the difference between a free course and a paid course. Paid course tends are considered to be more insightful and more helpful. So yeah, you can go to that particular point, but after some time. That's what I will suggest if you want to start your career as from a starting point in data analyst. And yeah, then we are going to move to our next question, which is, can you please tell us how can we apply and get the jobs in Dubai while working in India? It is required to come to in Dubai and get the job. Please share some possible ways. So yeah guys, I have already done a video on this, जिसमें मैंने अपनी खुद की पूरी जर्नी बताई है कि मुझे इंडिया में बैठ के जॉब दुबई में कैसे मिली है. You guys can refer that. There is a lot of content on our channel जो कि आपको हेल्प कर सकता है इन सारी क्वेश्चन से रिलेटेड. But long story short, you can do it. You can like looking for the job here in Dubai, sitting there from India. The best platform to do is
यू हैव टू सर्च इट फ्रॉम लिंक्डइन. लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जो आपको पूरी तरह से हेल्प भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा, एंड यू कैन लाइक कनेक्ट एंड रीच आउट टू डिफरेंट पीपल एज वेल. सो दैट्स द प्लेटफॉर्म. अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, टू बी ऑनेस्ट इनफ. एंड सेकेंडली व्हाट यू कैन लेवरेज इज सम लाइक कंपनीज वेबसाइट्स. यू कैन गो एंड अप्लाई ओवर देयर, और इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने चर्चा कर रखी है अपने अदर वीडियोज में. सो प्लीज गो टू एंड वॉच दोज वीडियोज एज वेल. We'll link them in the description as well for you guys to see and learn from them. Okay guys, so coming to the last question, इसमें मैं 2 questions merge करूँगी. How many years of experience a person need to move to Dubai in data analyst field, and what is the average salary of business analyst and data analyst? So yeah, this is our last question, and to answer this, बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक डोमेन के लिए एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है कि आपको इतना ही एक्सपीरियंस चाहिए होगा तभी आप आ सकते हो. यू कैन कम हियर, जॉइन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एन इंटर्नशिप, देन आप यू कैन फुल मूव टू अ फुल टाइम रोल. ऐसा कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मेंशन नहीं, बट इन केस यू ऑलरेडी हैव, दैट इज ऑल्सो अकोमोडेटिव एंड वेलकम्ड हियर. तब कुछ प्रोफाइल्स में मेंशन होता है 3 years 4 years ऑफ दुबई एक्सपीरियंस, या ऐसा कुछ वो लोग मेंशन करके रखते हैं. तो दैट्स ट्रू, दैट इज देयर इन दुबई, बट just like experience होना ही चाहिए, that's not at all true. Average salary what you can expect for a business analyst or a data analyst to get over there here is like, I assume they do not have any background experience and they are entering, so they can start from 4 to 7,000 AED per month. 4 to 7,000 AED is a broader category जिसमें आप try कर सकते हो और आपको job मिल सकती है. So this is the range you can try about, and if you have certain experience into this domain in the background as well, so you can bid for a little higher amount than this. सो ये था दुबई का पूरा Q&A सेक्शन, जिसमें हमने बहुत सारे अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स के कमेंट्स को पढ़ा, उनके क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश की, एंड वी ट्राइड टू हेल्प यू आउट टू द फुलेस्ट अपने तरीके से, अपने एक्सप्लेनेशंस के साथ. आई होप गाइज कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, हमारा वे ऑफ टॉकिंग या कॉन्वर्सेट करना समझ में आता हो, पसंद आता हो, and you guys feel connected to us in some way or other, because we do feel connected to you all guys. And yeah, that was pretty much for today's video, and what you can expect next is a bumper series of video coming on your way. So stay tuned, stay excited, and please do like, share and subscribe to our channel. Keep loving us the way you have been loving us so much so far. Mwah. Tribalites love you back. Ta-da!